in the times of lockdown and corona, where everybody is trying to, give some scientific yarn and all that, and science, all three of them come from science background. So today we are going to actually hear from them something, hopefully, about corona and lockdown and little bit of science that I think this country needs right now. But Komita, everybody comes from a science background. Okay. Okay. So, well, on that note, everybody comes from science background. Hopefully you'll enjoy the show, and I want to give maximum time to our performers, and we are very, very happy, and thank you very much again, all three of you, Rahul, Varun and Sanjay. So over to you. All right. Hello, everybody. Cheers. Hello, everybody. Sanjay, are you going to say hello, everybody? हेलो एवरीबॉडी. मेरा माइक पता नहीं कौन भूत घूम के यहाँ पे ऑफ करके चला गया इसको यार. सर, कोरोना वायरस के एक वायरस ने नहीं सर, आपके माइक ने आरोग्य सेतु ऐप नहीं डाउनलोड किया होगा. दैट इज ट्रू, बट आई एम टेलिंग यू, इसलिए वो ऑफ हो गया. फोटो नहीं है कपिल मिश्रा का, सॉरी, एक भी फोटो नहीं है मेरे घर में, इसलिए ऑफ हो गया. तो देखो भाई और बहनों, संजय और मैं हर साल मेडे में आते हैं और कुछ बतियाते हैं और कुछ गाने गाते हैं. तो इस साल भी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि लॉकडाउन है, मगर इस साल पूरी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं मेडे सेलिब्रेट करने, मेडे बुक स्टोर का सेलिब्रेट करने. वहां पे actually Komita put up this awesome post on Facebook describing what happens there, and it's usually really, really hot in Delhi around this time. Today there's a surprisingly cool breeze blowing outside, but inside the bookstore it is so hot, and we're all sweating and we're drinking. In spite of this coffee made by Mukul, we are missing Mukul's coffee. And we are missing the awesome bread and cookies that we get. And of course, we are missing looking at the amazing books that are on sale. India has just extended the lockdown by another 2 weeks. All right. I had thought that, I have just 2 more days to go, but I was so wrong. Another 16 more days to go. It's been extended to 17th May. I have no idea till when this will keep getting extended. And neither has Varun and neither has Sanjay. Now, the first thing that struck me after lockdown started, that, everybody's God deserted them. Yeah. Mandir band ho gaye, Kabe band ho gaye, church band ho gaye. गुरुद्वारे में लंगड़ और लंगड़ का खाना चालू है, बाकी सब कुछ बंद हो गया. So maybe it's time to rethink where does your God reside? Okay. Maybe your God resides within you or doesn't reside anywhere at all. It's time to think about that. But we, the three of us, have a God that we would like to invoke in Aishitasi democracy. And it is the goddess of democracy, Democracy Mata. Traditionally, we always begin by invoking the Mata. But before that, I'd like to say something to you guys. Do you remember when the first Aaj bahar aake thali pito happened? So our beloved and great and godlike Prime Minister of India suggested that everybody comes out at 5 and beats plates with spoons to make a noise to show support for the people who are working, the health workers. And presto, suddenly, our WhatsApp feeds were filled with people saying how astrologically fantastic it is, how that sound will drive away the corona, how 99.9% of the virus will die because of the one-day lockdown, and then this is a masterstroke. Nothing happened. People came and beat their thalis. They started at 10 to 5, then they came out onto the streets, beating the entire idea completely.
And then 2 weeks after that, we were asked to light lamps at a certain time, and the same people posted similar astrological rubbish about how lighting a lamp at that time would focus the energies and the heat would drive out the virus. You know, our country is full of extremely stupid people as well. There are very intelligent people, but there are extremely stupid people as well. But none of them then apologized for forwarding this rubbish when the cases kept rising. We, the three of us, believe in the goddess of democracy and we invoke her. So I will invoke her and pass this on to Varun Grover. Higher democracy. सांप के मुंह में चुचुंदर जैसे उगली join and niggly joy. ऐसी तैसी democracy. Democracy माता तेरी सदा ही जय हो. स्वाहा. वरुण, over to you. जी नमस्कार सारे देखने वालों को नमस्कार. हम हैं ऐसी तैसी डेमोक्रेसी. अभी अभी आपने पहली बार ऐसी तैसी डेमोक्रेसी में डेब्यू देखा हमारी कैट, मेरी कैट दिलबर का. उसका नाम दिलबर है. उसका पहला ये ऐसी तैसी डेमोक्रेसी गिग है. आज तक वो आया नहीं है. वो बहुत खुद को बहुत समझदार समझता है कि ये सब फालतू चीजें उसके लिए नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आज उसको इसका हिस्सा बनना पड़ा. राहुल यू कैन म्यूट. हाँ ओके, आपने कर दिया म्यूट. म्यूट होने के बाद भी लेकिन राहुल के घर से डॉग्स की बार्किंग की आवाज आ रही है ना. हाँ मन की बात आ रही है उनके कुत्तों की. तो खैर, तो मैं ये कह रहा था, हम तीन हैं और हम लोग कड़वी बातें करते हैं जनरली इस शो में, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी. जैसे कि इस देश में, क्योंकि बहुत चाशनी बहुत है इस देश में, इतनी मिठाइयां हैं, इतनी चाशनी है. मिनिस्ट्री है पूरी, होम्योपैथी की एक मिनिस्ट्री बना रखी है हमारे देश में. होम्योपैथी की मिनिस्ट्री, आप सोचो, आयुष मिनिस्ट्री है जिसमें कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक है. होम्योपैथी की मिनिस्ट्री है तो मेरे ख्याल से जलेबी की भी हो सकती है. होम्योपैथी और जलेबी में सिर्फ मैदे का फर्क, और कोई फर्क नहीं है, कुछ भी और फर्क नहीं है. उसकी मिनिस्ट्री हमने बना रखी है. तो खैर, इस देश में इतनी ज्यादा मीठी बातें होती ना, दिमाग नहीं लगाते, तो हमने सोचा हम कड़वी बातें करने के लिए थोड़ा सा अपना एक शो बनाते हैं. हमारे शो है ऐसी तैसी डेमोक्रेसी. पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने लाइव देखा होगा. जिन्होंने देखा होगा बड़ी किस्मत की बात है, क्योंकि अब तो पता नहीं कब लाइव होने वाला है. अब तो लगता है अगली आइस एज के बाद होगा अगला लाइव. तो फिलहाल मैं, वरुण, इधर राहुल और ये संजय, और हम तीनों में से कोई भी गांधी नहीं है, और इसलिए हम लोगों को मजबूरी में कॉमेडी करनी पड़ रही है, नहीं तो हम लोग पॉलिटिक्स में होते. तो खैर, जो राहुल बोल रहे थे, बात यही है कि कोरोना आया है तो इस देश का अचानक से साइंटिफिक टेम्परामेंट खुल के सामने आ गया है. उस पर संजय भी अभी बात करेंगे. लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है हमारे देश का, इतना अमेजिंग, किसी ने सोचा नहीं था कि जब मुसीबत आएगी तो ऐसे फट के सामने आएगा, ऐसे, मतलब इतना अमेजिंगली कि क्या क्या नहीं बातें हुई. एक एमपी ने बोल दिया, मेरे ख्याल से बीजेपी के एमपी थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट से बाहर निकल के ही बोला कि भाई धूप में 15 मिनट खड़े होने से कोरोना जो है मर जाएगा. उनकी इमेजिनेशन, कोरोना जो है वो पापड़ है, आलू के पापड़ नहीं जो होली में बनाते हैं, वो भी, अब पापड़ भी नहीं सूखता 15 मिनट में, पहली बात तो. पर उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, धूप में 15 मिनट आप खड़े हो जाओ, कोरोना मर जाएगा, आप हर रोज 15 मिनट धूप में आ जाओ. मैं कह रहा हूं, फिर तो धूप में आना ही है तो अपने ऊपर सरसों का तेल भी लगा लो, थोड़ा हल्दी लगा लो, कोरोना का अचार ही बन जाए, कुछ टेस्टी भी बने ना. खाली कोरोना मर तो जाए, गल जाएगा, उसका अचार भी खाओ, फिर तुम बेचो. बहुत मतलब डेलिकेसी हो सकता है. चाइनीज ही खरीद लें वापस की, चलो कुछ नया मिल रहा. तो ये एक पहले वो चला. फिर आया कि भाई खबर आ गई व्हाट्सएप पे, क्या क्या नहीं आया. खुद सरकार को इसका खंडन करना पड़ा. सरकार ने अपने ऑफिशियल चैनल से इस खबर का खंडन किया. ऐसी खबर आ गई व्हाट्सएप पे कि रात को 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि
पेस्टिसाइड का स्प्रे होने वाला पूरे देश पे कोरोना को खत्म करने के लिए। पूरे देश के ऊपर से हवाई जहाज जाएंगे और हेलीकॉप्टर जाएंगे और वो देश पे कुछ छिड़काव करेंगे और उससे कोरोना मर जाएगा। पहली बात तो अगर इंडिया में किसी को बोल दो कि भाई ये काम मत करो, है ना, रात को बाहर मत निकलो, तो आप देखना छत पे कितनी भीड़ लग जाएगी, कितने लोग आएंगे देखने। यहाँ पे जेसीबी की खुदाई देखने के लिए आपने देखा कितने लोग होते हैं। जेसीबी कहीं पे मशीन खोद रही हो सड़क पे, तो जो भीड़ लगती है वो भीड़, मतलब मैं खुद खड़ा, एक्चुअली अच्छी मशीन है काफी, मतलब है ना, अमेजिंग है देखने में, साईफाई जैसी लग रही है। ऐसा हाथ है ना, ऐसा उसका आता है और ऐसे रोड उखाड़ देता है और समझ आता है कि हमारी रोड कितनी कमजोर है। हम लोग सोचते थे बड़ी मजबूत रोड है, वैसा एक मशीन आती है उखाड़ के चली जाती है। तो वो है, वो क्यूट चीज है। लेकिन आप सोचो कि सरकार को ये बोलना पड़ा कि ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रात को 11 बजे, मतलब ऐसा है वो छत पे आगे देखने लगो। और क्या सोच, ये कैसी सोच है, कौन सा, ये लोगों ने वायरस को क्या समझा? वायरस क्या वो कोई फेल्ड आशिक है जो रात को छत पे शराब लेके चांद देख रहा है और ऊपर से आएगा हेलीकॉप्टर और उस पर छिड़काव करेगा और वायरस बोलेगा ओहो गलती हो गई, छत पे नहीं आना चाहिए था आज रात को। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं वो हमारे देश में चल रही। फिर तीसरा आया, कोई किसी ने बोल दिया कि 1 मिनट जो है आप चेक करो, आपको ना कोरोना का सबसे आसान टेस्ट जो सरकार किट्स मंगा रही है, एंटीबॉडी टेस्ट मंगा रही है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट करना, आपको कोरोना वायरस है कि नहीं, कोविड है कि नहीं, आप 1 मिनट अपनी सांस रोक के खड़े हो जाओ। अगर आप सांस रोक पाए तो आपको कोरोना नहीं है। मैं कहता हूं अगर आप 8 मिनट सांस रोक लो तो कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद तो सारी, ये मेरी गारंटी है, सारी बीमारियां खत्म आपकी। 8 मिनट रोक लो, और बहुत हिम्मत है तो 15 मिनट रोक लो, ठीक है, उसके बाद सारी बीमारियां आपकी खत्म। ये मेरी गारंटी, मैं लिख के देता हूँ। इस तरह की हरकतें हमारे देश में होती हैं। लेकिन ये क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे जो इतने बड़े कॉर्पोरेट गुरु हैं बाबा रामदेव, उन्होंने एक वेब, आजकल इसी तरह का जो जैसा सेशन हम कर रहे हैं, ऐसा ही कोई सेशन उन्होंने किया था। उसमें उन्होंने बता दिया कि जो सरसों का तेल नाक से पी लो तो कोरोना जो है वो मर जाएगा। तो बंगालियों ने तो सोचा ये चैलेंज दे रहे हैं, उन्होंने बोला ये तो हम करके दिखा। सरसों का तेल कहीं से भी हमको बोलो, हम पीने को तैयार हैं। लेकिन वो इस तरह की हरकतें, उन्होंने बोला कि पेट में इतना एसिड वो नाक से जाएगा, फिर वो पेट में पहुंच जाएगा, तो पेट में इतना एसिड होता है कि उससे कोरोना मर जाएगा। पेट में पता नहीं कितना एसिड होता है, उनके दिमाग में बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। पर बात यहाँ नहीं खत्म होती। सबसे फैसिनेटिंग र्यूमर जो मैंने सुना, गजब का र्यूमर है, और ये र्यूमर है, प्लीज इसको फैला मत देना, मेरा क्लिप काट के ये देखो वरुण ने ये बोला है, यूज कर लो। ये सच नहीं है, ये झूठ है सरासर। लेकिन ये मैंने सुना, और ये मुझे किसी ने, मैं जब बात कर रहा था इसी पे कि क्या क्या चल रहा है इंडिया में कोरोना को लेके, किसी ने मुझे बताया कि बिहार में शुरुआती दिनों में, अब पता नहीं अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, शुरुआती दिनों में कोरोना का क्योर वायरल हो गया था ये व्हाट्सएप पे, कि अगर आपके घर में कोई भी देवी भागवत, देवी पुराण है, तो पुराने होते हैं ना, बहुत ऐसी किताबें होती है जो ले लेते हैं घर के कोई बड़े बूढ़े, उसके बाद बच्चे, तो नई जनरेशन तो पढ़ती नहीं है, तो वो रखे होते हैं मिट्टी खाए हुए। तो देवी भागवत आप ढूंढें। पहली बात, पहली शर्त, आपके घर में देवी भागवत होना चाहिए। दूसरा, आप उसको पलटें और उसमें अगर आपको कोई पुराना बाल मिल जाए तो आप पे देवी की कृपा है, आप लकी हैं। एक बाल आपको पुराना मिलना चाहिए। तीसरा स्टेप अमेजिंग है, यहां तक खत्म नहीं होती। ये नहीं है कि आपको मिल गया तो आप लकी, आपको नहीं होगा। अभी आपको एक्शन भी करना, ये नहीं है, किस्मत नहीं है, कर्म भी इसमें जुड़ा हुआ है, सिर्फ भाग्य नहीं है। कर्म ये है कि आपको वो बाल खा लेना, आपको कोरोना नहीं होगा। उसके बाद लोगों ने बैठ के किताबें पलट पलट के उसमें बाल ढूंढे बिहार में, ये चल रहा है। आप सोचो कितने लेवल ऑफ कर्म और भाग्य इसमें। ये सुन के ट्रंप ने बोला ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, ये साला मैं सुनाता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये क्या है, कितना अमेजिंग आइडिया है। ये ट्रंप का फेलियर ये है कि ट्रंप को बिहार ने भी हरा दिया साला, इतना गजब है। ये एक
यहां तक हुआ, लेकिन सबसे वाइल्ड न्यूज जो है, सबसे वाइल्ड हिंदुस्तान में अभी तक कोरोना की फाइट में हमने जो सबसे अमेजिंग काम किया वो ये है कि गोवा में एक बंदे को सपने में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का कॉम्बिनेशन आया कोरोना के इलाज के लिए। पहले तो आप सोचो कितनी सैड लाइफ है इस आदमी की कि इसको सपने में जड़ी बूटियां आ रही हैं। सपने में भी अगर आपको जड़ी बूटी आए तो आप जी क्यों, तो क्या कर रहे हो लाइफ में, बताओ यार। सपने में उसको जड़ी बूटी आ रही है, ये उसको सपने में कोरोना का इलाज की जड़ी बूटी का कॉम्बिनेशन आया। इट गेट्स क्रेजियर। उसने ये जड़ी बूटी का कॉम्बिनेशन चिट्ठी लिखी आयुष मिनिस्ट्री को, वही जो आयुर्वेदिक वाली जो मैंने बोला, आयुर्वेदिक और यूनानी और होम्योपैथी की जो हमारी मिनिस्ट्री है, उनको बोला कि भाई मेरे को सपना आया है और आप ये इलाज आप सुन लो मेरा। इट गेट्स इवन क्रेजियर। मिनिस्ट्री ने बोला हम इस पे रिसर्च करेंगे। मिनिस्ट्री, आप सोचो, मिनिस्ट्री जो चीज जहां पे उनका रिसर्च लैब होगा, जो बंदे सच में 2 साल से या मान लो अभी 2 महीने से ही रिसर्च कर रहे हो, जो 25 आयुर्वेदिक साइंटिस्ट, उनको बुलाया गया होगा कि इधर आओ, ऐसा है तुम जाओ घर पे, हो गया आपका काम खत्म, रिसर्च नहीं चाहिए आपकी। सर क्या हो गया? नहीं, वो सपना आ गया एक को, ये हुआ है। मैं क्या बोलूं इसमें, यहीं पे फीड खत्म हो जाना चाहिए आज का। इसके आगे अभी कोई किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको भी सुनने की जरूरत नहीं है। रॉजर वाटर्स को भी आप ईमेल लिख दो कि भाई ठीक है, अब आप हो गए किसी लेवल पे, हम आप इसके आगे कोई क्या बोले, अभी कहाँ बात कहाँ ले जाए बताओ। रिसर्च जो कर रहा, जो आदमी बेचारा, उसको अगर पता चले कि साला मैं कर रहा था रिसर्च, मैंने जिंदगी भर पढ़ाई की, एक चूतिया साला सपने में आया, उसको उसने उसका इलाज आप रिसर्च करा, उस पर काम कर रहे हो, तो मैं नहीं समझ पाया सपनों में क्या मतलब किस लेवल पे रुकेंगे ये लोग। मुझे भी सपना आया था कल, मैं बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री जितनी है सारी सुन ले। मुझे सपना, अर्नब को थप्पड़ मारो कोरोना ठीक हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप विश्वास ना करें इस पे सीधे, ये नहीं है कि सीधे इसको ना अप्लाई कर दें लोगों पे। आप ट्रायल करें, क्लिनिकल ट्रायल करें, रैंडमाइज्ड ट्रायल करें, 250 लोगों को बुलाएं जो कि रैंडमाइज्ड, वो पता भी नहीं आपको उनको कोरोना है कि नहीं, अलग अलग प्रांतों से लोगों को बुलाएं और अर्नब को थप्पड़ मरवाएं, फिर देखें 2 हफ्ते बाद उनको हुआ है कि नहीं हुआ। आई एम वेरी श्योर 90% को नहीं होगा उसमें से। तो काफी इफेक्टिव ड्रग है ये मेरे हिसाब से। तो ये यहां तक ये हिंदुस्तान की बात हुई। लेकिन हमारा जो प्यारा मित्र है ना, जो अभी आए थे केमचो, ट्रम्प साहब, वो इससे भी कहीं आगे हैं मेरे ख्याल से। एक पूरे दिन में 15 मिनट का ही समय होता है जब मुझे अपने प्रधानमंत्री से प्यार होता है, वो तब होता है जब मैं ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं 15 मिनट। वो 15 मिनट में मुझे लगता है कि भगवान तेरा बहुत, पहली बात तो भगवान है, वो देख के मुझे विश्वास होता है कि भगवान एग्जिस्ट करता है और भगवान ने ये चुना है हमारे देश के लिए कि हमारे पास ट्रम्प नहीं है। आप सोचो अगर कि इस देश में ट्रम्प होता तो मतलब हम कहाँ होते इस समय। उस आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चल रहा होता है, जो जो हरकतें होती हैं, कोई जर्नलिस्ट को उसने कुछ उसने बोल दिया था कि ये जो है मैं हर स्टेट का लॉकडाउन खुद डिसाइड करूंगा, और वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है। तो किसी ने उससे, जर्नलिस्ट से पूछा कि आप कैसे करोगे, उसने कहा मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने कहा कि आपको किसने कहा कि प्रेसिडेंट के पास कंप्लीट पावर होती है। ट्रम्प उसको घूर के देखा जर्नलिस्ट को, और क्या जवाब था उसका, उसने बोला यू आर अ बैड पर्सन, यू आर अ बैड पर्सन। 4 बार उसने बस उस जर्नलिस्ट को ये बोला है। तो वहां पे बात खत्म कर दी उसने, उसका सिंपल सा जवाब था। लेकिन ट्रम्प ने थोड़े दिन पहले बोला, शायद पिछले हफ्ते की बात है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया हम तो ये सपने में आया है जिसपे रिसर्च हो रही है कम से कम आयुर्वेदिक मिनिस्ट्री में। ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के सामने बोल दिया कि डिसइंफेक्टेंट पी लो या इंजेक्ट कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। और अमेरिकी ऐसे महान हैं, पी लिए लोगों ने,
एक दिन में कुछ 150-200 केस न्यूयॉर्क में ही आ गए हॉस्पिटल में कि लोग भाई साहब फिनाइल पी के आ गए हैं, डिटॉल पी के आ गए हैं और कुछ कुछ करके कि बोला था जी, प्रेसिडेंट ने बोल दिया था हमको। उसने कहा कि अगर आप डिसइंफेक्टेंट पी लो तो अमेरिका बच सकता है। मेरे ख्याल से अमेरिका बच सकता है अगर ट्रंप डिसइंफेक्टेंट पी ले। और इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और ओवर टू संजय। इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बहुत बातें संजय के पास हैं, असली साइंटिस्ट हमारे ग्रुप के संजय हैं, हम तो फिलोसफर हैं। तो अब संजय आगे ले जाएंगे हमको। मतलब मैं मुझे फिलोसफर बनना है यार, मुझे ही क्यों साइंटिस्ट बनना है बार बार? जितनी भी बातें, अच्छा ठीक है, साइंटिस्ट फिलोसफर, साइंटिस्ट फिलोसफर। मजे की बात यह है, जितनी भी बात वरुण ने करी है इसमें एक भी जोक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारी की सारी चीजें वाकई में हुई हैं, हमारे कंट्री में भी हुई हैं। और ये अभी ट्रम्प की बात कर रहा था वरुण के, पेस्टिसाइड पी लिया लोगों ने। मैं बता रहा हूँ यहाँ तो उसने बाद में, ट्रम्प ने ये बोला कि मैंने तो सरकाज़म किया था। ट्रम्प के पास ये लग्जरी है कि बाद में ही बोल सकता है कि सरकाज़म किया था और करके छूट जाए। हमारे वाला अगर बोल देता कि पेस्टिसाइड पीना, लोग बालकनी में जाके पीने लग जाते यार। यहाँ तो इस तरीके का माहौल बना के रखा हुआ है। और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें, साइंटिफिक तो हम कभी भी थे ही नहीं। और इस कोरोना के जो क्राइसिस ने हमको टोटली एक्सपोज करके रख दिया है। बिल्कुल अभी आपने देखा होगा कि जैसे कि अपन अक्सर बात करते हैं हिंदुस्तानियों को एक चुतियापा दो, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं। वो उसने भाई ने आके ये बोला था पहले, लॉकडाउन से पहले, कि अपनी बालकनी में जाके ना जरा अप्रिशिएट कर दो हेल्थ वर्कर्स को, ठीक है, और ये बजाने लग जाओ। लोगों ने मतलब उसको नेक्स्ट लेवल पे ही लगे, इतनी जोर जोर से थालियां पीटनी शुरू कर दी कि मतलब आसपास के बंदर जो मेरी कॉलोनी में बंदर है वो सहन के मतलब बड़ी अजीबी नजरों से इंसानों को देखने लगे कि वी वर सपोज्ड टू इवॉल्व इनटू दिस। इस तरह की हरकतें ये करने लग रहे हैं, थालियां पीट रहे हैं। और आप बाकी छोड़ो, प्रियंका चोपड़ा एलए में थाली पीट रही है यार, लॉस एंजलिस में वो थाली पीट रही है कि मोदी जी ने कहा है। कौन पूछ रहा है वहां पे जाके? ये लोग इतने, ये कौन? और अगर आप नहीं पीट रहे हो तो आजकल जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो मोदी आर्मी बन चुकी है, वो आके आपका दरवाजा खटखटाती हैं कि भाई आप ये क्यों नहीं ताली पीट रहे हो, मोदी जी ने कहा है। तो बेसिकली हमें प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए। हमारी मेंटालिटी ये है कि राजा है जो हमें 4 थप्पड़ ना लगाए ना जब तक, तब तक हमें लगेगा नहीं कि वी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय समवन हु इज सुपीरियर टू अस। ये हमारे यहाँ ये मेंटालिटी है। हमें डेमोक्रेसी का मतलब किसी को पता ही नहीं है। और कोरोना ने तो क्लियरली एक्सपोज कर दिया है। अभी जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो एक फाशिस्ट की वेट ड्रीम है कि आप सबके सब अपने घर में बंद रहो और मेरी मन की बात सुनते रहो, आपको हम बाहर आने नहीं देंगे। और उसके सपोर्ट में लोग आ रहे हैं। उसके मतलब बॉलीवुड में एक से एक महारथी। एक तो ये सोनू निगम करके एक बंदा है, इसने बोला था जब पहला लॉकडाउन हुआ था 14 घंटे का, तो सोनू निगम ने ये बोला था, ये ट्वीट किया था कि मोदी जी ने बड़ा स्मार्ट मास्टर स्ट्रोक किया है। वो ये कि वायरस की जो एज है वो 12 घंटे की होती है और मोदी जी ने लॉकडाउन किया 14 घंटे। तो मतलब इसलिए वायरस की एज से 2 घंटे ज्यादा किया, ये मास्टर स्ट्रोक है। इस बेवकूफ से कोई ये पूछे अगर 14 घंटे का मोदी जी ने लॉकडाउन किया, सुबह 6 बजे वो शुरू होता है और रात को 8 बजे जाके खत्म होता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो वायरस उसी के बीच में पैदा हुआ, 6 बजे पैदा हुआ? अगर वायरस जो है 6 बजे से पहले पैदा हो गया या शाम को 4 बजे पैदा हो गया, तो उसको लॉकडाउन को क्या फर्क पड़ेगा? इतनी छोटी बेसिक सी बात नहीं समझ में आती। ये वही लोग हैं जो इस तरह की बातें करते थे 2 साल पहले कि अपनी एज में, अपनी मतलब अपने ईयर ऑफ बर्थ में अपनी एज ऐड कर दो तो करंट ईयर आ जाएगी। और इस बात में मेस्मराइज हो रहे थे कि देखो कितना जबरदस्त फैक्ट हमने बताया है। कल परसों भी कोई चल रहा था इरफान खान की डेथ और ऋषि कपूर की डेथ के ऊपर कि ऋषि कपूर वाज बोर्न इन 1952 एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 68। 52 में 68 ऐड करो 2020 आ जाएगा। इरफान वाज बोर्न इन 67, ही डाइड एट द एज ऑफ 53। 67 में 53 ऐड करो 2020 आ जाएगा। ये इसको मिरेकल मान रहे थे लोग, मैथमेटिकल कुछ कनेक्शन मांग रहे थे इनकी डेथ के बीच में। सोनू निगम ये ट्वीट कर रहा है, अमिताभ बच्चन अलग से ट्वीट कर रहा है। अमिताभ बच्चन ने पूरी अपनी जवानी में तो हमारा दिमाग खराब किया एंग्री यंग मैन बन के, और बेमतलब का एंगर सारे मर्दों में घुसा दिया। इस सोसाइटी के जितने भी मर्द हैं खामखा एंग्री यंग मैन बनते हैं, बिना किसी कॉज को उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, और वो अमिताभ बच्चन ने खराब किया हुआ है। उसके बाद उसने शराबी बन के खराब किया, शराब को उसने दिखाया कि ये बहुत बड़ी मचिज्मो वाली चीज है। अब जाके जब बूढ़ा हो गया बैठ के अपने ट्वीट पे का नंबर डालता है T2300 ऐसे करके, उसको बेवकूफ ट्विटर अपने आप ही इसका नंबर बताया था, देखो तूने कितने ट्वीट कर दिए, तो क्या लिख रहा है टी करके, और वहां पे लिख रहा है कि नक्षत्र मिल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाना हो जाता है, और इस तरह से वायरस मर जाता है। यार मेरे को लगा देख के क्या, मुझे समझ में आया कि औरंगजेब ने शाहजहां को क्यों किले में बंद कर दिया था।
क्योंकि ये हिंदुस्तानी बूढ़े करते इस तरह की बातें हैं कि शाहजहां ने वो ताजमहल बनाने के बाद एक काला ताजमहल बनाने की बेवकूफी की बातें करनी शुरू कर दी। पहले ताजमहल में ही सारा खजाना खाली हो गया था, उसने काला ताजमहल भी बनाना है। औरंगजेब ने उसको पकड़ा और उसे लाल किले में बंद करके छोटी सी खिड़की दे दी कि यहाँ से देखता रहे ये ताजमहल। यही बात अब अमिताभ बच्चन कर रहा है। अगर अभिषेक बच्चन से पकड़ के 4 जूते ना मारे हैं तो फिर क्या करे बेचारा है। और फिर बागवान जैसे पिक्चर बनाए थे जिसमें दिखाते हैं कि भाई औलाद बाप पे जुल्म कर रही है। बाप ऐसी हरकतें करेगा तो औलाद तो जुल्म करेगी। उस घर में मैं आपको बता रहा हूँ, बाप बेटा नाक नहीं कटवा रहा है, बाप नाक कटवा रहा है इस तरह के ट्वीट करने के बाद। लेकिन और भी कमाल की बात कर दी, फेक फोटो चला दी अमिताभ बच्चन ने यार। वो जो व्हाट्सएप पे फेक नासा की एक फोटो दिखा दी कि जो रात को लाइटें बंद कर दी थी या जलाई थी, मुझे समझ में नहीं आया उसमें इंडिया कैसे दिख रहा था। वो फोटो अमिताभ बच्चन चला रहा, बुढ़ा सटिया गया, हमारे यहाँ का एंग्री यंग मैन सटिया गया और अपने ट्वीट को नंबर कर रहा है। और आपको एक पढ़ के दिखाता हूं कि एक शाइना एनसी करके है बीजेपी की कार्टून, उन्होंने उस वक्त में एक ट्वीट किया। ट्वीट पूरा पढ़ के बताता हूं, मैंने लिख के रखा हुआ है। जब मोदी ने बोला था कि भैया कि पहले लॉकडाउन में 14 घंटे का लॉकडाउन है, शाइना एनसी ट्वीट करती है, आवर लीडर नरेंद्र मोदी इज अ क्लास अपार्ट। वैसे तो मैं अगर यहीं पे खत्म कर दूं तो या बस्ते रोडते हो जाओगे सुबह तक, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हूं। Our leader Narendra Modi is a class apart. He deserves a standing ovation. Right. पुराणों के हिसाब से घंटी और शंख की आवाज से बैक्टीरिया, वायरस आदि मर जाते हैं, इसलिए पूजा के समय हम लोग घंटी और शंख बजाते हैं। 120 करोड़ लोगों की घंटी, शंख, ताली, बर्तन बजाने के पीछे कितनी बड़ी सोच है मोदी जी की। Can you believe this shit? These are the people who are in power. हमें गधे रूल कर रहे हैं। अगर कोई एलियन है ना, अगर ये 120 करोड़ लोग मिलके घंटी, शंख, ताली, बर्तन बजाएंगे ना, तो जो एलियन है ना उसको पता चल जाएगा कहां से अटैक शुरू करना है, कौन सबसे ज्यादा बेवकूफ है, इसको सबसे पहले पेलो। तो ये बोल रहे हैं कि क्या कितनी बड़ी सोच है मोदी जी की। लेकिन प्रॉब्लम असल में ये है कि बेवकूफों की कमी हमारे मुल्क में है नहीं। एक महिला ने बोला कि मुस्लिम महिला थी, उन्होंने बोला कि कोरोना मुसलमानों को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि कुरान से कोरोना बना है। मैंने कहा बाजी एक बात तो बताओ यार, फिर तो जो कोरोना बियर पीता उसको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। मतलब लोगों ने साइंस की ऐसी धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है ना, ये हमारे, मैं वही बोल रहा हूँ, हम कभी भी साइंटिफिक थे ही नहीं। हमने साइंस के साथ ऐसा बर्ताव किया, मैंने हमेशा बोला साइंस के साथ हमने ऐसा बर्ताव किया जैसा एकता कपूर के सीरियल में जो है ना, जो लड़के के घर वाले जो ना लड़की के मायके वाले के साथ करते थे कि इनसे जो मिल रहा है ले लो और बाद में ये भी कह दो कि ये तो हमारे पास पहले से ही था, वेदों में हमारे पास सब कुछ था। ठीक है, अगर मैं बता रहा हूं कल को किसी गोरे ने आके कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन निकाल भी दिया ना, तो ये हिंदुस्तानी चिल्लाने लग जाएंगे, ओ ये तो वेदों में पहले ही था। वेट कर रहे हैं कि कब गोरा निकाले, उसके बाद वेदों का नाम लगा देंगे, अरे वेदों में सब कुछ था। और फिर बीच में कोई अंग्रेज लेके भाग गया है, अब वो हमारे पास वापस आ रहा है, तो हमने साइंस की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। तो और ये गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है, ये तो हेल बेंट है कि आपको आपके दिमाग से, आपकी जिंदगी से, आपकी सोच से साइंस और रैशनैलिटी हटा दे बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप साइंटिफिक होंगे, रैशनल होंगे, तो आप सवाल पूछेंगे। सवाल इन्होंने पूछवाने ही नहीं है आपसे, आपके सवालों के जवाब इनके पास है नहीं। मतलब अगर सवाल की बात करूं ना मैं, अब से 20, 25, 30 साल बाद अगर हम बच भी गए और जनरल नॉलेज इज स्टिल अ थिंग इन इंडिया, तो जनरल नॉलेज का एक बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना क्राइसिस हु सेड दीज फेमस वर्ड्स, थाली बजाओ, दिए जलाओ, लेकिन मुझे माफ कर दो। है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोरोना का हल है। लास्ट में आके माफी मांगते हैं। एक तो भाई जब भी आता है हम ही से मांगने लग जाता है कि मैं आपसे फिर से मांगने आया, मुझे पता है आप निराश नहीं करोगे। ओ भाई तो चाय वाला था, मान लिया मैंने, अब थोड़ी है यार, है हम भी कभी मांगने तेरे से, हमारे को भी कुछ दे दे, या हर बार आके हमसे ही मांगने लग जाता है। टेरर हो गया लोगों में यार। ये तो वही बात होगी जब मैं स्कूल में पढ़ता था और कभी क्लास में मेरे मार्क्स कम आ गए, पिताजी आ जाते थे मेरे रिपोर्ट कार्ड लेने क्लास के अंदर, तो देखते थे कि तो इसके मार्क्स कम है किसी चीज में, तो मेरे को धमकी देके चले जाते थे कि शाम को 6 बजे मैं घर आऊंगा तब तेरे को दिखूंगा। पूरा दिन मेरे तोते उड़े रहते थे। ये मोदी जी सुबह सुबह बोल देते हैं कि 8 बजे आ रहा हूँ शाम को, पूरा दिन सबके तोते उड़े रहते हैं, पता नहीं शाम को क्या बोलते यार ये आदमी। लेकिन और साइंस की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं, मतलब ये इन्होंने अजीब अजीब किस्म की बातें करनी शुरू कर दी है। हर्षवर्धन दिल्ली का जो बीजेपी का मिनिस्टर है, वो बोलता है कि स्टीफन हॉकिंग के मरने के अगले दिन भाई बोलता है कि
even Hawking has said that Vedas are superior to is equal to MC square. Now what the fuck does it mean? Vedas are superior to is equal to MC square. Science मैंने भी पढ़ी है, आप में से भी बहुत लोगों ने पढ़ी है. Less than, equal to, greater to and not equal to, सबके साइन है. Superiority कौन सा साइन है साइंस के अंदर यार? Vedas are superior to is equal to MC square. और इतना चंट कि हॉकिंग के मरने के अगले दिन बोल रहा, ताकि हम हॉकिंग से जाके चेक भी नहीं कर सकेंगे तुमने ये बोला है नहीं बोला है. ये कुछ बात होती है कि वेदास आर सुपीरियर टू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर में 20 दिन मेरा सर मैं छोड़ता रहा, मुझे बाद में समझ में आया कि फॉर एन अपर कास्ट हिंदू एवरीथिंग इज अबाउट सुपीरियरिटी ऑफ वेदास. इवन ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर को नहीं छोड़ा इसने, उसको भी वेदास की सुपीरियरिटी पे, वेदास को उससे भी सुपीरियर बता दिया. हद ही होती है लोगों की. वो त्रिपुरा का बोलता रहता है महाभारत में इंटरनेट था यार. कुछ तो ऐसी बातें करो ना यार जो आने वाली जनरेशन को बता के चले कि हमारे यहाँ इस टाइम पे ऐसे लीडर्स थे जो इस तरह की बातें करते थे. महाभारत में इंटरनेट था तो क्या बनाया तुमने वहां पे? क्योंकि वो संजय जो महाभारत की लड़ाई दिखा रहा था धृतराष्ट्र को, ठीक है, क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखता नहीं था तो वो संजय उसका लाइव टेलीकास्ट उसको इंटरनेट के थ्रू ही बता रहा था. वो यार तुम इतने एडवांस हो, धृतराष्ट्र अंधा क्यों था यार? उसके चश्मे लगवा देते, उसकी आंखों ऑपरेशन करा देते, उसको ठीक करा देते, भारत मैट्रिमोनी.com बना लेते. वो अर्जुन बेमतलब में स्वयंवर के चक्कर में लगा हुआ था कि मछली नीचे लगी हुई निशाने ऊपर लगा रहा है. वो अपने प्रोफाइल में लिख देता कि यार मैं तो निशान चाहिए, साला द्रौपदी का भी भला हो जाता, उसे पता चल जाता है तो 5 है. ये सब काम क्यों नहीं करे आपने? वो सत्यपाल मुंबई का कमिश्नर बोलते रहते हैं कि यार इवोल्यूशन की थ्योरी झूठ है. इवोल्यूशन की थ्योरी झूठ है कि क्यों? क्योंकि मेरे दादा दादी ने देखा बंदर को आदमी बनते हुए. यार इवोल्यूशन है कोई मैगी नूडल थोड़ी है यार कि इवोल्यूशन की थ्योरी तेरे दादा दादी के सामने हो जाएगी. बेसिकली पॉइंट ये है कि हमने इतनी बेवकूफी की बातें हम करते हैं. हमारा कल्चर नहीं है. हमारे यहाँ स्टीफन हॉकिंग 25-30 साल पहले इंडिया आया था, श्री फोर्ट में दिल्ली में उसका कोई सेशन था और वहां पे इंडियंस अपने बच्चों को लेके पहुंच गए कि मेरे बेटे को गुस्सा बहुत होता है, इसे कौन सा अंगूठी बनाऊं मैं. मतलब तो स्टीफन हॉकिंग दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट, ब्रिलियंट माइंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी एंड इन दिस सेंचुरी, उसको एस्ट्रोलॉजर बना दिया. ये हमारा कल्चर है. हमारे यहाँ क्रैकपॉट साइंसेस की इतनी सेलिब्रेशन होती है, इतनी सेलिब्रेशन होती है कि एस्ट्रोलॉजी की जैसे मैं बात कर रहा था है, पामिस्ट्री करके एक चीज है, हाथ दिखाने ले जाते हैं लोग दूसरों के पास. हर ज्योतिषी हर हरामी को ये बोलता है कि तुम आदमी बहुत अच्छे हो, लोग गलत समझ लेते हैं तुमको. मैं गारंटी से दे रहा हूं अमित शाह को भी वो यही बोलेगा, तू बंदा तो बहुत अच्छा है, लोग तेरे को गलत समझ लेते हैं. मोदी को भी वो हिटलर को भी यही बोलता है तू गैस चैम्बर तो ठीक बनाता है, लोग गलत समझ लेते हैं तेरे को. ये हमारे यहाँ खूब चलता है कि हाथ दिखाने ले जाओ, जन्म पत्नियां बनवा लो. एस्ट्रोलॉजी की कॉलम पढ़ते हैं लोग अखबारों में, डेली अखबार में कॉलम पढ़ते हैं लोग बैठ के और फिर कहते हैं नो आई डोंट बिलीव इन दिस स्टफ, मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ. यार एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और कर लो ना यार, स्पोर्ट्स खेल लो, कोई और किताब पढ़ लो, कोई सिनेमा देखने चले जाओ और कुछ नहीं तो गोलगप्पे छोले कुलचे खाने चले जाओ. ये एस्ट्रोलॉजी कौन पढ़ता है एंटरटेनमेंट के लिए? और उस एस्ट्रोलॉजी के कॉलम में लिखा हुआ है योर सन साइन इज वर्गो एंड योर लकी नंबर इज 7, योर लकी कलर इज ब्लू टुडे. व्हाट डू आई डू विद दिस इंफॉर्मेशन? मेरा आज लकी नंबर 7 है, मैं माथे पे 7 लगा के नीले कपड़े पहन के सड़क पे निकल जाऊं, कोई भी लड़की दिखे उसको मैं फ्रेंडशिप कर लो, आज मेरा लकी डे चल रहा है, एस्ट्रोलॉजर ने बोला. ये खूब चलता रहता है. एंड मैं सही बता रहा हूँ, लोगों को बहस करने के लिए कुछ भी बोलना जरूरी कि नहीं. प्लैनेट्स के अलाइनमेंट से ना हमारे पे बड़ा फर्क पड़ता है, हमारे मूड पे बड़ा फर्क पड़ता है और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है. ये सब जो ना ऊपर वाले की मर्जी से. मैं तेरे घुमा के थप्पड़ दूं और बोल दूं मैंने थोड़े किया, उसकी मर्जी है, मान लोगे तुम उस बात को, तब तुम लड़ने आ जाओगे तूने मेरे को हाथ कैसे लगा दिया. तो ये इंसानी कौम जो है ना रिलीजन के साथ, स्पेशली जो हमारा माहौल बना हुआ है रिलीजन के साथ, हमने प्लेनेट का विनाश करने का ठान लिया है. अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट होता सोसाइटी के अंदर ना तो ये कोरोना का इलाज अब नहीं, कोरोना के आने से पहले ही आ चुका होता. बॉम्ब बना लो, मिसाइलें बना लो, बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स बना लो, एक वायरस ने आके तुम्हारी बुन फाड़ दी, एक वायरस ने आके. अब इन जो जितने भी आपने मिसाइलें बना के रखी हुई ना, छोड़ दो इनको. पाकिस्तान के ऊपर करके आज सर्जिकल स्ट्राइक, अपने यहाँ के लोगों को ताला बंद करके आपको रखना पड़ रहा है. लेकिन आपसे एक वैक्सीन बनाने के लिए आपके पास कोई गेम प्लान नहीं है, सपने दिखा रहे हो आप, लोगों के सपनों को देख के रिसर्च कर रहे हो. हमारे यहाँ ये तो देखो, मैं एक सिंपल सी बात मानता हूँ, जब तक हमारे यहाँ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा, जब तक हम अपने घर में साइंस को एनकरेज नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही लोगों से बेवकूफ बनते रहेंगे. ऐसी डेमोक्रेसी के नाम पे इस किस्म की सरकारें हमारे पास चुन के आती रहेंगी. आपके घरों में भी कई बार होता है. कितनी बार मैं बड़े सारे ऐसे लिबरल वोक लोगों से मिलता हूँ कि जो जनेऊ पहन के बैठे हुए सामने, वो कहते मैं तो सब कास्ट वास्ट में बिलीव नहीं करता और इन सब में बिलीव नहीं करता, मैं तो रैशनलिस्ट हूँ. तो ये जनेऊ क्या पहन के रखा हुआ तूने? कि नहीं यार ये तो मम्मी ने पहना दिया था यार, ये मम्मी का दिल नहीं दुखा सकते. अरे भैया मम्मी का दिल दुखाना बहुत जरूरी है. अगर टाइम पे मम्मी पापा का दिल दुखाया होता तो घटिया घटिया व्हाट्सएप ग्रुप में जो मोदी भक्ति चल रही है नहीं चल रही होती. लेकिन असल में सच बात यह है, हम बाहर के मोदी से लड़ने चले जाते हैं. और मैं फिर बोलूंगा कि ये बाहर का मोदी लड़ना फजूल है. इससे लड़ना फजूल है क्योंकि ये मोदी तुम्हारे घर में बैठा हुआ है. इस घर के मोदी से आप तभी लड़ सकते हो जो अपने दिमाग से ये बड़ों की इज्जत, रिश्तेदारियों की इज्जत,
करने का ये भूत अपने सर से उतारोगे और साइंटिफिक लेवल पे लोगों से बहस करोगे और लोगों से कभी भी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे कि भैया मैं तो जो है ना अपने पापा की बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए उनके खिलाफ नहीं जा सकता। बस मुझे दोस्तों इतना ही कहना था। और इसके बाद राहुल जी जरा एक दो गाने सुना के ना लोगों का थोड़ा मैं बस एक बात मैं बस हाँ ये जोड़ना चाहता था कि जिस दिन भी वैक्सीन आएगी कोरोना की, जहां से भी आएगी दुनिया में, वो गोवा का वो बंदा उठ के बोलेगा मेरे को सपने में यही आई थी। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल यही होगा। हाँ, अब राहुल जी आप पेश करेंगे गीत। राहुल जी गीत पेश करेंगे कोरोना पे, पर एक्चुअली कोरोना पे ना बहुत सारे गाने बन सकते हैं। कोरोना कोरोना आता है, हमें सताता है, कि लॉकडाउन देता है, फिर भी लोग मरते हैं। कहो कब जाओगे, कहो कब जाओगे, कि घर पे दारू खत्म हो गई है। ये भी बन सकता है। नहीं नहीं, ये गंदी बातें मत करो, पीपल आर लिसनिंग, गंदी बातें। कोरोना है सब दिशा, ओ सैया तू जाएगा कहाँ। कोरोना है सब दिशा, ओ सैया तू जाएगा कहाँ। घर पे बैठ ले जरा, ये छैया पाएगा कहाँ। अरे ठेके भी बंद हैं, ढाबे भी बंद हैं, मॉल की लिफ्ट है खाली, मॉल की लिफ्ट है खाली। झाड़ू उठा ले, पोछा लगा ले, अच्छे से धो ले फिर थाली, अच्छे से धो ले फिर थाली। फिर हाथ रगड़ ले, ये साबुन पाएगा कहाँ। कोरोना है सब दिशा, ओ छैया पाएगा कहाँ। मास्क लगा के घर से निकलना, सबसे दूर रख लेना दूरी, सबसे दूर रख लेना दूरी। अरे मंदिर भी बंद हैं, काबे भी बंद हैं, घर पे ही खा हलवा पूरी, घर पे ही खा हलवा पूरी। फिर से हाथ रगड़ ले, ये साबुन पाएगा कहाँ। कोरोना है सब दिशा, ओ छैया पाएगा कहाँ। कोरोना है सब दिशा, ओ छैया तू जाएगा कहाँ। अब आप सोच लो, मुझे ये नहीं समझ आया ये लॉकडाउन किस बेसिस पे बढ़ाया जा रहा है। सडनली कल बोला है उन्होंने, आज मे डे है, याद रखिए मे डे को सब कह रहे हैं कि अब सरकार ने बोला है, कल बोला है कि ट्रेन श्रमिकों को घर वापस ले जाएगी। क्या बदल गया भैया? बदला क्या है? आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ये क्यों नहीं किया?
जब आपने लॉकडाउन अनाउंस किया था, आपने सोचा था श्रमिकों के बारे में? Did you think about the labor before you said nobody is going anywhere? सर कुछ भी बोलो राहुल सर, हाँ, एक फकीरी तो है मोदी जी। The fakiri means I don't give a fakiri about what you're thinking about. हाँ, PM cares बनाया है, मतलब he cares. So ये जो क्या हुआ? Prime Minister's relief fund was termed inadequate and wrong suddenly for Corona. So a new fund has been created, but which is not to be audited by the government people at all. It's a fund which is outside the ambit of the government. Yet it's a government fund, but not a government fund. And people are being forced to contribute salary to this government fund so that it can be used in ways which we will never know, because there is no public audit of this fund ever. Nobody's asking questions about it, because if you ask questions in this country, you're seditious. You're anti-national. All right? UAPA. I'm going to, sorry? UAPA लग जाएगा आप पे. हाँ. I will be charged under the NSA and I will be sent to jail if I ask any questions about why a separate fund and why should it be outside audit by the government? Why? Why should we not know who contributes to it? Why? नहीं सर, लेकिन आपको राहुल सर, आपको नहीं ये सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए. आपको ये सवाल पूछने चाहिए. आप जेल जाओगे तो आप तिहाड़ जाओगे. तिहाड़ इज लाइक अ फार्म हाउस. मैं अगर ये बात मुझे समझ में आता है, मैं डांसना चाहूंगा सर. मुझे डांसना जाना पड़ेगा. I would rather be home than in Tihar. So I want to end with the way we normally end Aisi Taisi Democracy. Talking about who's going to get the money. Huh? Where's the money gone? And tell me, who did it? To whom did it belong? Are democracy. अरे सब के मुंह में छछंदर जैसी उगली जा न निकली जा सीधा सी डेमोक्रेसी फिर भी गर्व है तुझी को पाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कहते रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला अरे देखो जी मैंने तो लॉकडाउन किया और साथ में पीएम केयर बनाया पैसा कौन डाले कोई देखेगा साला पूछेगा तो मैं तिहाड़ में डाला इकोनॉमी की लग गई राजा सीधी सी बात ना मिर्च मसाला कहते रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला अरे बाकी जो बची वो सीधी कहानी आधी माटी आधा पानी जब कद्दू कटेगा संजय तो सब में बटेगा जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा थोड़ा अदानी थोड़ा अंबानी बाकी खाए पीएम केयर साला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला ऐसी तैसी डेमोक्रेसी Thank you, everybody. Thank you. Good night. Thank you. Thank you, everybody. Good night. Thank you very much. I can't thank you enough, all three of you. और अभी बहुत सारे comments आए हैं हमारे पास comments box में बाहर जहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि maybe this was the best rant ever because everybody want you know सबके पास बहुत कुछ है कहने को लेकिन कहाँ कहें कैसे कहें
So I think all three of you just gave voices to our rants and what we are feeling, and you know, this whole unscientific, scientific, that nonsense that has been going on. So it has been really, really, really wonderful. If you want to play another song before we wind up, maybe, or can I play the demonetization song? Yeah, sure. Why not? Why not? We have because, you know, that reminds me of what happens and what is happening now. That somebody says something, you just have to follow it and ask no questions. All right? Modi ji, Modi ji, बेचो देश की बोदी, अरे बाजार में तुमने, अरे सबकी खुल के, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, बेचो देश की मोदी जी, अरे बाजार में तुमने, सबकी खुल के, मोदी जी, मोदी जी, मोदी। आपने बोला डिमोनेटाइज, पूरा नेशन कट टू साइज। आपने बोला डिमोनेटाइज, पूरा नेशन कट टू साइज। काले धन पे अटैक ये अनाउंस कर दिया, जब लगी लंबी लंबी लाइन, आपने फिर से बदली लाइन। जब लगी लंबी लंबी लाइन, आपने अपनी बदली लाइन। कैशलेस है प्रोजेक्ट ये प्रोनाउंस कर दिया। अबे कैशलेस प्रोजेक्ट होता तो आज क्यों है कैश इतना ज्यादा? 4 साल बीत चुके हैं, कैशलेस नहीं हुआ, करप्शन नहीं गया, काला धन नहीं गया, नक्सल नहीं रुका, आतंकवाद नहीं रुका, उस नोट में चिप नहीं था। हाँ मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी बोले थे इकोनॉमिक जी, पूरा था पॉलिटिकल। अरे नाउ वेलकम योगी जी, योगी जी, योगी जी, व्हाट अ लवली हेट स्पीच जी। डेमोक्रेसी की तुमने ऐसी तैसी कर दी जी, मोदी जी, मोदी। बेचो देश की मोदी जी, बड़े बाजार में तुमने पक्की खुल के छोड़ दी जी, मोदी जी। And now here's a little bit for the lockdown. मोदी जी, मोदी जी, खींचो देश की मोदी जी। डेली वेजर की तुमने, सारी लेबर के तुमने, अरे हंस के कब्रें खो दी जी, मोदी जी, मोदी जी। Thank you very much. Acid democracy. Thank you very much.